خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہتے ہیں۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔ نماز کے احکام سے ہم اس وقت الحمدللہ اپنے معتکفین اسلامی بھائیوں کو غسل کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کل ہم نے ان اسلامی بھائیوں کی نماز کی سنتیں اور فرض سکھائے تھے۔ فرض علوم تو وسیع ہے، روزانہ ہم کچھ نہ کچھ الحمدللہ جدول کے مطابق سکھایا جا رہا ہے، کافی بہتری آ رہی ہے۔ بنیادی جو فرائض علوم ہے وہ الحمدللہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ حلقہ کن اسلام بھائیوں کا ہے؟ یہ پٹانے سے میں کے خیبر پختونخوا سے جو تشریف لائے ہیں ان اسلامیوں کا ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے نا وہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، اور منہ میں پانی اس طرح نہیں ڈالنا ہے کہ صرف ہونٹوں کے ساتھ لگائے اور پھر پھینک دے، بلکہ منہ کے ہر کونے میں اور ہر جگہ میں پہنچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پورے بدن پر، پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ ہمارے کو چلنے پھرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں، کہیں آتے جاتے ہیں تو نگاہیں اپنی نیچے رکھ کے چلے۔ آج غسل کے فرائض سیکھے۔ غسل کے 3 فرائض ہے، پہلے کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر پورے ظاہر بدن پہ پانی ڈالنا۔ سنتیں اور آداب کا حلقہ ہے اور چلنے کی سنتیں اور آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ راستے چلتے ہوئے راستے میں کسی چیز کو ٹھوکر نہیں مارنی، سڑک کے ہمیشہ دائیں سائیڈ میں ایک سائیڈ میں ہو کے چلنا ہے، سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ کر چلنا ہے، راستے چلتے ہوئے راستے میں جگہ جگہ تھوکنا نہیں ہے۔ بہت محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دی سیکھنے میں، الحمدللہ بہت بہترین ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک دعوت اسلامی بن گئی اور یہ تربیتیں ہماری ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم پہ۔ مجھے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا تھا میرے لنگس میں زخم ہے کینسر کی صورت میں، کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ رمضان ملا، فیضان مدینہ کا رخ کیا اور یہاں پر آ کر اتنا سکون کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے میں کسی اور جگہ جایا کرتا تھا، لیکن یہاں پہ مجھے کوئی بلانے دعوت دیتا تو میں انکار کر دیتا تھا، لیکن اب یہاں آ کے دل کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ آنے کا کوئی ارادہ تو نہیں خاص تھا، لیکن دوستوں نے، بھائیوں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، ٹکٹ کٹوا دیا، آپ نے جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کسی اور دوست کو بھیج دو، نہیں کہنے تو آپ ہی نہیں جانا ہے۔ فیضان مدینہ ہمارے پاس ہی تھے، میں کبھی بھی نہیں گیا فیضان مدینہ فیصل آباد میں، کہتے رہتے تھے آؤ آؤ، میں کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ خود جاؤں گا ہر جمعرات کو۔ مدنی چینل اگر چل رہا ہوتا تو میرا دل نہیں کرتا دیکھنے کو، میں کوئی اور چینل لگا دیتا تھا۔ پختہ ارادہ کر لیا مدنی چینل کے سوا اور کوئی چینل نہیں دیکھوں گا۔ میری نیت تھی سوا، مگر امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پہلے رمضان کو امی اسپتال میں تھی، مگر میرا موڈ کینسل ہو گیا تھا امی کے چکر میں، مگر پھر امی نے میرے کو بلایا، بولا تم جاؤ اعتکاف کے اندر، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ پھر میں اسی ٹائم اور اسی وقت یہاں آئی ہے۔ امی سے رابطہ ہے، فون پہ بات بھی ہوئی ہے، اور امی پوچھ بھی رہی ہے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ پچھلی دفعہ 15 روزے رکھے تھے، مگر اس دفعہ میں نے پورے روزے رکھوں گا، یہی نیت ہے۔ پچھلے سال اعتکاف کیا تھا تو اس میں نیت کی داڑھی کی، تو ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی الحمدللہ۔ تو اس دفعہ یہ نیت کی کہ یہاں سے اپنی زندگی بدل کے جائیں گے انشاءاللہ، یعنی دین کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بس۔ نگران شورا بیان فرما رہے تھے کہ جو حیا ہے وہ ہمارے دین اسلام کی پہچان ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو حیا ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس بیان سننے سے پہلے کچھ اور تاثرات تھے، اور اس بیان سننے کے بعد الحمدللہ کچھ اور تاثرات ہیں۔ نگران شورا نے بیان دیا ہے نا، اللہ کی ذات گواہ ہے کہ جب گلی سے گزرتے تھے نا تو گلی میں بھی ایسی بندے کی نگاہیں اٹھتی تھیں کہ بس بندہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ نگران شورا کا بیان سننے کے بعد ایک سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ میں بہت مشکل مراحل سے گزر کر الحمدللہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ جو پہلے گیدرنگ ہوتی تھی
बुरी बुरी सोबत थी या जो भी दोस्त थे पहले वाले, इंशाअल्लाह उन सब दोस्तों से छुट्टी करूँगा इंशाअल्लाह। जी अमीर अहले सुन्नत से के साथ शायरी करने के लिए लाइन में साहब खड़े हुए हैं। दिल में बहुत तड़प है, पापा के साथ शायरी करें। अल्लाह के वली की बारगाह में बार बार जितनी दफ़ा हाजिर हो जाए उतना कम है। आप इस अंदाज में क्यों बैठे हुए हैं? ये दावत इस्लामी की माहौल का बरकत है, और यहाँ पर जब हम आए तो बहुत से सुनते हमने सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत मुबारक इस तरह बैठे खाना, ये बायां बिछाना चाहिए और दायां खड़ा करना चाहिए। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कहाँ से सीखा आपने इस तरह? बापा से। बापा ने कहा उल्टे हाथ में पकड़ के सीधे हाथ तोड़े। यहाँ एक इंसानियत ज़िंदगी और खाने का तरीका, सलीका जीने का और बैठने का उठने का सुन्नत मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है। किसी मदनी भाई को अगर आप टक्कर भी लग जाएं या किसी से हादसे तौर पर अगर आप टकरा जाते हैं तो उसको अगर आप कहे तो माजरत और मुस्कुरा के कहता है कोई बात नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ मुझे अपनी और सारी दुनिया की सलाह की कोशिश करनी, लोगों की सलाह की कोशिश करनी है। पहले सुना ही था, इधर आए तो पता लगा वाकई कुछ होता है। हल्के पे जाते हैं मज़ा आ जाता है। हल्कों में क्या मज़ा आता है? पहले पता ही नहीं होता सी जी। नमाज अलिफ बे दिन सानू आंदी सही, नमाज सही तरह आंदी नहीं सी। नमाज माशाल्लाह सारी आन ला पी गई। इन्ना दिल लग पा तो मदद कहता छड़न दिल नहीं करता। घर वाले भी परेशान होते थे, दोस्त यार भी, पूरा रिश्तेदार भी सब परेशान होते थे। मैंने हर काम वो कर लिया था जिंदगी का जो नहीं करना चाहता मेरे को। मेरी नमाज भी सही नहीं थी, मेरे को वजू के सुन्नत के तरीके भी नहीं पता थे, गुस्ल के तरीके भी नहीं पता थे। यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में अपने पीर मुर्शिद के दर पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ ने बात सही जीने का मकसद सीखा, कैसे जीना चाहिए सुन्नत के मुताबिक। पहले सुन्नत के मुताबिक नहीं जी रहे थे, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, किसके साथ किस तरह बात करनी है, कुछ नहीं था। मैं जो है मलेशिया में शादी करना चाहता था, तो अम्मी ने कहा कि वहाँ नहीं करो वरना तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गया, पाकिस्तान आया। अम्मी ने कहा भाई कमाता तो तू रहेगा ही, एक काम कर 1 महीने के काफ़िले में बैठ जा, नमाजी बन जा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आज आया हूँ तो अपने पीर से एक बार मिल लूँ। और खुदा की कसम कल ऐसा करामत हुई कि मेरे पीर मुझसे 10 कदम दूर थे। मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत रोया कल, इतना रोया कि मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था। पीर साहब को जब देख रहे थे रोना क्यों आ रहा था आपको? रोना इसलिए आया कि 12 साल हो गए और कराची में ही रहते हैं, और वो भी कराची में रहते हैं, और मुलाकात कभी ना हो सकी। मुझे इधर आकर वज़ू की सुन्नतों का पता लगा कि वज़ू की 14 सुन्नतें भी होती हैं। बहुत 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 इल्म दीन हासिल करने का मौका मिल रहा है। मेरा दिल नहीं लग रहा था शुरू में, और अब माशाल्लाह इतना दिल लग रहा है कि जिसका कोई हद नहीं। उस वक़्त गुनाहों भरी ज़िंदगी में दिल लगता था, अब तौबा की सादत नसीब हुई है। इंशाल्लाह मैं नियत भी करता हूँ कि दाढ़ी शरीफ से जाऊँगा। अल्लाह करम करेगा तो सारे गुनाहों से तौबा करके जाएंगे, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। माशाअल्लाह। आइए चलते हैं सवालात और उसके जवाबात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। रिसाला ज़ियाद दुरूद व सलाम, पेज नंबर 2, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हम्दो सना व दुरूद पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1440 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज चौथी रात है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में कसीर आशिकान रमज़ान मुअतकिफ़ हैं।
मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता हूँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बादशाह करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। मदनी मुज़ाकरे में हमारे साथ खुसूसी शिरकत है पाक यूसुफी काबीना कोट भाई खान झावरिया ज़िला गुलजार तोयबा सरगोदा, पाक रहमानी काबीना मिट्टी बाबुल इस्लाम सिंध। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरदाराबाद भी हमारे साथ शामिल है, माशाअल्लाह। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स दुनियावी मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो उससे कैसे बचा जाए? बराए करम इसका जवाब अता फरमा। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार, एक तो ये शायद अगर ये माना है तो दुनिया की मोहब्बत तो है मतलब तमाम ख़ताओं की जड़। ये हदीस पाक में दुनिया की मोहब्बत तमाम ख़ताओं की जड़ है, अच्छी चीज़ नहीं है दुनिया की मोहब्बत। हदीस पाक में कि दुनिया मुर्दार है और इसका तलबगार कुत्ता है। दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए इसकी मजम्मत जो है, इसकी बुराइयाँ, इसकी खामियाँ ख़राबियाँ, इसका मुताला किया जाए और जो दुनिया की मोहब्बत से दूर हैं उनकी सोहबत इख्तियार की जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत में कमी आएगी। माँ बाप की खिदमत, बाल बच्चों की खिदमत शरीयत के मुताबिक, ये दुनिया की वो मोहब्बत नहीं है जो नुकसान पहुँचाए। दुनिया की मोहब्बत वो ख़राब जो आखिरत को नुकसान पहुँचाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि जैसे हमारे साहिल ने दुनियावी मोहब्बत का तज़किरा किया, तो एक तो मुराद दुनिया की मोहब्बत हो सकती है जिसके ताल्लुक़ से आपने मदनी फूल दिया। अगर इसमें ऐसी सोच में ये हो कि किसी का जहन इश्क़ मजाजी की तरफ बन गया हो तो आप उस ताल्लुक़ से भी अगर कुछ मदनी फूल दें कि कोई इश्क़ मजाजी में अगर गिरफ़्तार हो गया है तो अब इस शख्स को क्या करना चाहिए? इन्हें खुदा न खास्ता कोई सा मामला पेश आया जैसे कि पहली नज़र पड़ गई और वो दिल में घर कर गई या दिल में घर कर गया, औरत है तो उसके, और इश्क का इब्तला हो गया, इश्क मजाजी हो गया, लेकिन उस पर हरगिज़ दूसरी नज़र ना डाले, जानबूझकर बिल्कुल ना देखे, ना उससे मुरासिम रखे, ना उससे ख़तों किताबत करे, ना उसके फ़ोन से कोई तरकीब बनाए, ना तोहफ़े ताइफ की तरकीब करे। बल्कि अब अगर कोई जायज़ सूरत है निकाह की वो हो जाती है तो मरहबा, नहीं होती तो बहरहाल सब्र करे, कोई नाजायज़ तरीका इख्तियार ना करे। तो अब अगर इस इश्क में सब्र उसने किया और इसी में अगर वो घुल कर फोत हो गया तो शहीद है। बाहर शरीयत में जो लिखा उसका मैंने खुलासा अर्ज़ किया। लेकिन आजकल जो इश्क मजाजी में ये एहतियात नहीं होती, बल्कि इश्क मजाजी तो शायद कसदन कई जगह तो किया जाता होगा कि यार ये सब इश्क लड़ाते हैं, ज़रा मैं भी तो आजमाऊँ कि इसमें मज़ा आता होगा, तो यूँ वो फंस जाते होंगे। फिर मज़ा कभी क़ज़ा लाती होगी कि फिर ख़ुदकुशियाँ करते हैं। तो ये इश्क मजाजी जिसमें बदनिगाही होती है, साथ सैर व तफरीह होती है, खुफिया जगहों पे मुलाकात होती है, टेलीफोन पर बात होती है, सौगात गिफ्ट वगैरह की लेन देन वगैरह का लेन देन होता है, तो ये तो ज़ाहिर है कि ये सब गुनाह के काम है। फ़ोन पर बात भी अब लज्जत के साथ, गंदी लज्जत के साथ ही होती होगी ज़ाहिर है इसमें, तो ये सब गुनाह के काम है और इससे तौबा करनी ज़रूरी है।
और इसको तर्क करे। तकलीफ होगी, वही सब्र करेगा तो इंशाअल्लाह अजर पाएगा। बस इससे जान छुड़ा ले, दोनों एक दूसरे से जान छुड़ा ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद यासिर अतारी सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, जिस तरह हिसाब किताब हर कारोबार का असूल होता है, हम दूसरों के मामलात पर भी नज़र रखते हैं और नुक्ता चीनी भी करते हैं। हमारा अपना नामा अमाल का हिसाब रखने का जहन कैसे बने? सुभान अल्लाह। दुनियावी हिसाब किताब तो आम तौर पे आदमी रखता है, और दिन का हिसाब पूरा शायद रात को सोने से पहले करते होंगे, नमाजों में कर लेते होंगे। वो किसी ने चुटकुला भी इस पर बनाया कि एक शख्स की जमाअत निकल गई तो वो रोने लगा, तो लोगों ने समझा कि ये बड़ा नेक आदमी है, जमात निकल गई इस पर रोता है। तो इससे हमदर्दी का इजहार किया, कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह माफ़ कर देगा, आप घबराए नहीं, आप जानबूझकर तो जमात थोड़ी छोड़ी होगी। तो उसने कहा कि मैं जमात निकलने पर नहीं रो रहा, होता ये कि मैं जमात के साथ जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो उस नमाज के दौरान मैं अपनी दुकान का सारा हिसाब किताब कर लेता हूँ, आज मुझे अलग से उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो यूँ नमाज में वाकई यानी कि वो कारोबारी ख्यालात भी बचना मुश्किल है, टालना चाहिए, इसको बचना चाहिए। तो बहरहाल ये कि अपने हिसाब, जिसको मुहासबा कहते हैं, अपना हिसाब किताब। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना रात अपने पाँव पर दुर्रा मारते, वो हंटर, और फरमाते कि बता आज तूने क्या क्या किया है। हालांकि ये तो यकीनी जन्नती साहबी है, लेकिन इतना ख्याल था अपने आमाल का कि कहीं तुमने गुनाह तो नहीं किए, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी पर जुल्म तो नहीं किया। हालांकि ये आदिल थे, फारूक आज़म आदिल, नऊज़ु बिल्लाह, जुल्म का इनके यहाँ क्या तसव्वुर। ताहम इतना मतलब है कि इनको एहसास था अपने हिसाब किताब का। तो दावत इस्लामी वालों के लिए भी मदनी इनामात का रिसाला दिया जाता है, मकतबुल मदीना से लिया जाता है वो, तो उसको रोज़ाना फ़िक्र मदीना करनी होती है। इस्तिलाह यानी रोज़ाना ये गौर करे, ज़्यादातर रात को ही सहूलत रहेगी क्योंकि दिन भर में क्या क्या किया, ने किस किस मदनी इनाम पर अमल किया, वो लिखना होता है। इसको हमारे फ़िक्र मदीना की कहा जाता है। तो उसमें भी अपनी आखिरत के लिए बंदा सोचता रहे, इस मदनी इनाम पर अमल क्यों नहीं हुआ, इस पर हुआ तो इखलास था कि नहीं था, खाली खाना पूरी हो जाए, मेरे मदनी इनामात की तादाद बढ़ जाए, ताकि मैं लोगों में यूँ थोड़ा नेक नामी हो कि वाह भाई इतने मदनी इनामात पर अमल करता है, ये था या अल्लाह की रज़ा के लिए था, वगैरह वगैरह। ये गौर करता रहे, तो यूँ अपना हिसाब किताब करता रहे कि इससे पहले कि क़यामत का हिसाब सर पे आ पड़े, काश दुनिया में ही हम हिसाब से फारिग हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तरावी में जैसे सफ़े बन गई हैं और अब तरावी शुरू है, तो अब क्या होता है कि थोड़ी कभी 2-4 ऐसे बाहर निकल गए, फिर इधर से 2-4 बाहर निकल गए, तो आगे से कोई बाहर निकल गए, तो ये तरावी में सफ़े जो है ना वो मतलब कि वो तरतीब में रहती नहीं है। और जब पीछे वालों को वो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हुए हैं, आगे से 2 पीछे चले गए, वो बोलते हैं यार देखो तो तरावी तो पढ़नी नहीं है, ये बाहर चला गया। ऐसे तो तबसरे भी अल्लाह ना करे अगर होते हों, लेकिन ये जो सफ़ों की जो तरतीब डिस्टर्ब हुई है, इसके लिए तरावी पढ़ने वाले मुक्तदियों को की जिम्मेदारी क्या है? सल बेचारों, किसी को पेशाब लग जाता होगा, किसी को कुछ हो जाता होगा, तो ये निकल जाते होंगे, फिर वुज़ू करके आते होंगे, तो फिर जहाँ जगह मिली वहाँ खड़े हो जाते होंगे। दरअसल मसाइल का इल्म तो ना होने के बराबर है। सच्ची बात है कि अपने तो बिल्कुल यानी कि अल्लाह की रहमत पर ही नज़र रखी जाए, वैसे भी रखी जाए, जिसको मसाइल आते हो उसको भी रहमत पर ही नज़र रखनी है कि बख्शा रहमत से जाएगा।
तो अभी अब जो तरावी पढ़ते हैं या नमाजें पढ़ते हैं जिस तरह की पढ़ते हैं आम तौर पर हमको मतलब कुछ भी नहीं पता होता, ना ज़ाहिरी आदाब जानते हैं ना बातिनी आदाब जानते हैं। अब ये दीवाने भोले भाले मोतकिफिन आकर तासुरात देते हैं, पहले बहुत गुनाहगार था अब मैं सुधर गया हूँ, इनको पता ही नहीं होता सुधरना किसको बोलते हैं, ये बोल रहे होते हैं अपने मुस्कुरा रहे अंदर अंदर से कि ये बेचारा समझता है कि मैं सुधर गया हूँ, ये सही हो गया हूँ। ये सही नहीं हो गया क्या? आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं बुरे माहौल में था, मैं यूं था, मैं यूं था, अब मैं ये आ गया हूं, अब मैं बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं, मैं चेंज हो गया हूं, तो मैं नेक हो गया हूं, तो अभी अब है तो क्या है? नेक लोग होते हैं ना वो अपने आप को सुधरना नहीं कहते। मैं आला हज़रत का शेर सुनो, सुना है? वो सुना ना, तर्ज में पड़ेगा। गुनहे रज़ा का हिसाब क्या, वो अगर लाख से है सिवा, गुनहे रज़ा का हिसाब क्या, वो अगर लाख से है सिवा, मगर है अफू तेरे अफ़्व का तो हिसाब है न शुमार है। यानी अपने आप के लिए आजिज़ी फरमा रहे के रज़ा के गुनाहों का भी क्या हिसाब, हिसाब तो उसका होना कि लिमिटेड हो, या तो लिमिट ही नहीं है, मगर फिर रहमत पर नज़र है। अफ़ू माने मुआफ़ करने वाला, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। तो ए अल्लाह, ए मुआफ़ करने वाले परवरदिगार, रज़ा के गुनाहों का तो कोई हिसाब है ही नहीं, रज़ा के गुनाह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर तेरी रहमत तो वाकई उसका तो कोई सिरा ही नहीं है। मगर ये अफ़ू, तेरे अफ़ू का, तेरी मुआफ़ी के ख़जाने का तो कोई सिरा ही नहीं है, इतना है कि बस है, कोई इसको नाप ही नहीं सकता। तो मुझे यूं माफ़ कर दे। एक शेर में फरमाते, तुझ सा सियाह कार कौन, उन सा शफीर है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। न अपने दिल को आला तो कह रहे कि तेरे ऐसा काले काम करने वाला, गुनाह करने वाला कौन हो सकता है, सबसे बड़ा गुनाहगार है तू। तुझसा सियाह कार कौन, उनसा शफीक है कहाँ, फिर उन जैसा शफात करने वाला भी तो कोई नहीं है। यानी मैं गुनाहों में बेमिसाल हूँ, वो शफात करने वालों में बेमिसाल है। तो जब तू इतना बड़ा गुनाहगार है तो इतना बड़ा शफी तुझे कैसे भूल जाएगा, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है, ये तेरी सोच है। मेरे आका मुझे भूलेंगे नहीं। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यानी अब अपने आप को और ढारस दे रहे हैं, ए रज़ा काहे को घबराता है, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा है, रज़ा तुझे घबराने की क्या जरूरत है, तू तो गुलाम मुस्तफ़ा है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तुझे अमन बख्शा गया है, तेरी शफात होगी, तुझे अल्लाह की रहमत से जन्नत मिल जाएगी। तो ये मतलब रहमत पर नज़र, शफात पर नज़र और आजिज़ी। तो इसलिए वो ये कहना कि मैं यहाँ कर सुधर गया हूँ, तो वो भी आते ही सुधर गए। कोई तो चांद रात को सुधर गया, कोई पहले रोज़े को सुधर गया। अब ज़ाहिर है कि ये अभी के तासुरात नहीं है ना, रमज़ान को शुरू क्या चौथी रात है, तो किसी का कल के तासुरात चले होंगे, किसी के परसों के चले होंगे। तो ये मैं सबको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह ये अगर आपने जहन बना लिया ना मैं सुधर गया हूँ, तो फंस जाओगे। अभी तो सुधरने की सीन का पहला शोशा भी शुरू नहीं हुआ है, बस मैं आ गया हूँ, या अल्लाह मुझे बख्श दे, अच्छों के पास आ गया हूँ। अपने से दूसरे को अच्छा समझे कि यहाँ अच्छे अच्छे नेक बंदे बैठे हैं, मैं आ गया हूँ गुनाहगार, बस अब तू इनके सदके मुझे बख्श दे, और दुआ करता रहे मैं सुधर जाऊँ। और कब्र के
बिल्कुल किनारे तक पहुंचते तक ये दुआ करना कि या अल्लाह मैं सुधर जाऊं। यानी जब ये ज़हन बने ना कि अब मैं नेक बन गया हूं, तो समझो कि अब वो कुंडा हो गया। बहुत खतरनाक बात है कि ये ज़हन बन जाए कि अब मैं नेक बन गया हूं। आपका मौजू इतना खूबसूरत और इतना हुस्सास है। अब एक आम आदमी है, अब चूँकि ये माह रमज़ान की आमद हो गई, अब वो देख रहा है कल मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था, मेरी 5 नमाज़ें, चार रमज़ान की रातें हो गई हैं, मेरी एक नमाज़ नहीं जा रही, मेरी जमात से नमाज़ हो रही है, मैंने दाढ़ी रख ली है, मैंने फिल्में ड्रामे नहीं देख रहा, गाने बाजे नहीं सुन रहा हूँ, अब तो मैं मस्जिद में बैठ रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, और ये जितने भी उल्टे सीधे काम थे सब छोड़ दिए, 4 रातें हो गई, तो मैं अब ये ख़ुद को कैसे यहाँ समझाए कि मैं अभी नेक नहीं बनाऊँ, अभी तो नेक मतलब मैं गुनाहगारी हूँ, ऐसे ही मतलब वो क्या मैं अर्ज़ करूँ। तो इससे ख़ुद को समझाना और ख़ुद को ये रियलाइज़ करवाना कि मैं गुनाहगार हूँ, जबकि ये देख रहा है कि मैं नेकियाँ कर रहा हूँ, मैं दाढ़ी रख ली है और अब तो टोपी भी सर पर आ गई और इनके कहने बाद इमामा भी पहन लिया है मैंने, तो अब भी अगर नेक नहीं हूँ तो फिर नेक कब बनूँगा। आज से जितनी नेकी जितनी बढ़ेगी ना, हकीकत में नेकी बढ़ेगी तो आज से पैदा होगी। जैसे कि जो फलदार शाख होती है तो वो झुकती है, जितने फल ज़्यादा होंगे वो वज़न से उसका झुकेगी, और जिसमें एक भी फल नहीं है वो खूब अकड़ेगी, फल से खाली। तो जो अपने आप को नेक समझते हैं कि अब मैं नेक बन गया हूँ, तो वो समझो फलदार शाख नहीं है। इसकी मिसाल फलदार शाख जितनी नेकी ज़्यादा इतनी आजी ज़्यादा। हम है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना कोई नेक हुआ ना होगा। जिसको नेकी की तौफीक मिली इनके कदम की बरकत से मिली, ठीक है ना। तो फिर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना सय्यदो वलद आदम वला फ़खरा, मैं तमाम लोगों का सरदार हूँ फिर भी मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। यहाँ तो मतलब 4 आदमियों का लीडर होता है तो मतलब उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ता क्या है, समझा क्या है, किससे बात कर रहा पता है। और वो आका जिसके मतलब सदक़े में सारी कायनात बनी है, वो फरमाने वाला फ़खरा। एक आदमी कोई आया और आपके रोब नबूवत से कांपने लगा, तो उसको कुछ इस तरह तसल्ली दी कि मैं तो उस औरत का बच्चा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती थी, उसका बेटा हूँ मैं तो। आज सी फरमाई तो खुद फरमाते मन तवादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार की अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाएगा। तो हम लोग ये जो बेचारे नए नए ये बोल जाते हैं, तो मैं भी समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम आए ही सीखने के लिए। इसमें कोई किसी को शर्मिंदा ना करे कि देख तूने बोला था ना आज कैसी तेरी नाक कटी। नहीं, नाक कटी नहीं, बोलते वक्त कट चुकी थी, अब जुड़ गई, अब तो मदनी फूल मिले ना। तो इसलिए अगर आप दिल दुखाओगे तो ऐसे नहीं इस्लामी भाई जो ये बेचारे बोल जाते हैं कुछ ना कुछ, तो ये फिर शैतान उनको बहकाएगा और ये हो सकता है कि चले जाएं। तो आज तो माशाल्लाह एक तो मुझे तासुरात पर बड़ी तवज्जो गई। एक इस्लामी भाई ने बड़े प्यारे तासुरात दिए। वो कह रहे थे कि मेरा तो दावत इस्लामी की तरफ कोई रुझान ही नहीं था, न मदनी चैनल में देखता था, मुझे पसंद भी नहीं था। मैं तो कभी कोई लगा भी देता कहीं तो मैं घुमा देता कि मैं दूसरे चैनल पर, मैं खिलाफ था, नाराज था। इस तरह के तासुरात दिए। मेरे दोस्त मेरे गले पड़ गए कि तुझे फैज़ान मदीना चलना है। बोला मैं अपने शहर के फैज़ान मदीना में नहीं गया, कभी नहीं गया। तो वहाँ बनाई, टिकट भी कटवा दी, पैसे दिए, माशाल्लाह इनफरादी कोशिश की। बेहतरीन मिसाल है, जिन्होंने किया ना बहुत बड़े सवाब का काम किया। बोला ज़बरदस्ती बस वो मुझे ले आए हैं और बस अब मैं आया तो यहीं का होकर रह गया। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो अब हर जुमेरा तो इज्तिमा में जाऊँगा फैज़ान मदीना में, और मुझे ये समझ में आ गया माहौल। नहीं जब तक वो करीब नहीं आए थे तो इनको समझ नहीं पड़ रही थी, ये समझ रहे थे कि गलत लोग हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से उनकी गलत फहमी दूर हो गई। तो जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं वो भी एक बार आजमा लें, सुनी सुनाई बातों में ना आए लोगों की। ये ख़यानत का दौर है, बड़ा नाजुक दौर है, और तरह तरह की जो अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं, नेकी की दावत देते हैं, इनके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या मतलब बोलते रहते हैं। तो इसलिए आप एक बार आकर देख लें, इंशाअल्लाह आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा आप भी देखिए,
अब जैसे ये साईं भाई ने तासुरात दिए, तो ये ना समझे कि ये शैतान और नफ्स की शरारतों से महफूज हो गए, मैं सुधर गया। हाँ, ये ज़हन नहीं बनाना है, अल्लाह से हर वक्त डरते रहना है और अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना है। और शैतान का वार बहुत ख़राब होता है, नफ्स के वार बहुत ख़राब होते हैं, बस डरते रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना कि या अल्लाह यहाँ मैं आ गया हूँ, नेक लोगों में आ गया हूँ, आशिकान रसूल में आ गया हूँ, बस अब मेरा आखिरी सांस इन्हीं लोगों में निकले, मुझे कहीं शैतान और ना घसीटे। और जब कोई मुखालफत करे भी ना, मैं आपको अगर ये नुस्खा मेरा अमल कर लेंगे ना, असल फंस यूँ जाता है बंदा कि उसको जहन में ये शैतान डालता है, सुनो सबकी करो, अपनी अपनी करने की सलाहियत होती नहीं है, तो सबकी सुनता है ना, फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो अब जब ये दावत इस्लामी आपकी समझ में आ गई ना, तो दूसरा कोई कुछ बोले ना, कान बंद कर लो, यकीन मानो अगर आप उसकी सुनोगे नहीं ना, इंशाअल्लाह वसवसों में नहीं पड़ेंगे और यूं वाया मदीना आका के पीछे पीछे जन्नत है इंशाअल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। अच्छा, एक या दो ने तासुरात में ये कहा कि यहाँ हमने कुल्ली करना सीखी और नाक में पानी डालना सीखा, वुजू में फ़र्ज है, और ये इस तरह विचारों ने बताया। तो ये पानी डालना नहीं है वुजू में और गुस्ल में, बल्कि पानी नाक में चढ़ाना है। अच्छा, कहाँ तक चढ़ाना है? ये नर्म हड्डी तक, नर्म बांसा बोलते हैं इसको, बांसा माने ये हड्डी, नर्म हड्डी तक। अच्छा, अब रोज़े में भी चढ़ाना तो है पानी, लेकिन रोज़े में रेड अलर्ट, दिमाग में चढ़ गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए अपनी नर्म हड्डी तक जितना होले होले, जल्दीबाजी में चढ़ सकता है, अगर रोज़ा याद हुआ तो रोज़ा टूट जाएगा। तो यूँ थोड़ा डर डर के, यूँ सूंघ सूंघ के चढ़ाना है पानी, खाली डालना यूँ यूँ नहीं है। तो ये पानी नर्म हड्डी तक पहुँचाना, चढ़ाना, ये वुज़ू में सुन्नतुल मुअक्कदा और गुस्ल में फ़र्ज है। वो कुल्ली का तो एक शायद पठान भाई अच्छा बता रहे थे, और इधर भी और मुंह में, उधर भी और कोने में भी, खांचे में भी, तो वो सही है, सारे मुंह में पानी जो है वो बह जाए, हर कल पुर्जे पे इसके हल्क की जड़ तक। अलबत्ता हल्क से नीचे पानी अगर उतर गया वुज़ू में और रोज़ा याद था तो रोज़ा टूट जाएगा, और रोज़ा ना हो तो गरगरा करना भी सुन्नत है, मगर रोज़े में गरगरा करने की मुमानअत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, ये बहरहाल ये कि तासुरात इनके दिलचस्प होते हैं और बड़ा मज़ा आता है सुनने में, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बापा को सलामत रखे। बहुत ही अहम तरीन मदनी फूल हमें मिले हैं। क्या हाज़रीन, क्या नाज़रीन, कि हमें अपने आप को नेक समझना नहीं है, बल्कि ये दुआ करते रहनी है कि है ना, नेक बन जाऊं, ये जी चाहता है हर वक्त ये हो। क्योंकि देखिए, एक होता है वो क्या कहते हैं, ख़ुद को नेक साबित करने के लिए जीना, और एक होता है नेक बनने के लिए जीना। हमें अपने आप को नेक साबित करना भी नहीं है, हमें बस नेक बनना है, और रब ताला के हुजूर हर वक्त ये दुआ करते रहनी है, मौला नेक बन जाऊं, जी चाहता है। या खुदा के सदके सच्ची तौबा की तौफीक दे दे या खुदा मांगे रमज़ान के सदके सच्ची तौबा की तौफीक दे नेक बन जाओ जी चाहता है मौला नेक बन
बन जाओ जी चाहता है नेक बन जाओ जी चाहता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है उम्र पतियों में सारी गुजारी हाय फिर भी शर्मसारी उम्र बदियों में सारी गुजारी हाय फिर भी नहीं शर्मसारी बख्श महबूब का वास्ता है मौला बख्श महबूब का वास्ता है तू बख्श देगी सब के बेशुमार चुल देता हूँ तुझे वासिता शाहे इजाज़ का बख्श महबूब का वासिता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ अल्लाह अल्लाह, आपने नेक बनने की बातें की हैं। सवाल ये जहन में आता है कि नेक बनने से सिर्फ ज़ाहिर का बदलना काफ़ी है या नेक बनने का ताल्लुक कुछ बातिन से भी है? ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह ज़रूरी है। ज़ाहिर भी सही होना चाहिए, और दाढ़ी है, इमामा पहनता है तो और अच्छा है, या सुन्नत भरा लिबास, फुस्साक के लिबास से तो खास कर बचना ज़रूरी है, जो इनकी वजह हो उससे तो वाजिब है बचना। और इसी तरह मतलब है कि ज़ाहिरी बोल चाल, अखलाक, ये सब की इस्लाह होनी चाहिए। और साथ में ये कि दिल में जो बातिनी मामलात हैं, तकब्बुर, हसद वगैरह, इस तरह के बहुत सारे बदगुमानियाँ इनका दिल से ताल्लुक़ है, ये गुनाह भी बड़े मौलिक हैं, बर्बाद करने वाले हैं, तो इनसे भी बचना ज़रूरी। ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह के लिए बंदे को कोशिश करनी चाहिए। तो ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह के लिए इह्याउल उलूम अल्लाह तौफीक दे तो इसका मुताला करें। 5 जिल्दों में ये मकतबतुल मदीना से उर्दू में मिल सकती है, इमाम गज़ाली की किताब है। और छोटी किताब कम से कम पढ़ लें, मिनहाजुल आबिदीन, ये भी बहुत प्यारी किताब है ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह के लिए। और इसका भी अब वो तलखीस भी है इसकी, मुख्तसर मिनहाजुल आबिदीन, वो तो थोड़े सफ़ों की होगी, कम से कम यही पढ़ लीजिए। यहाँ वैसे उम्मीद है कि लाइब्रेरी भी होगी, अल मदीना लाइब्रेरी तो है अपनी, तो इसमें भी ये किताबें आपको बगैर पैसों के पढ़ने के लिए वहीं पढ़ना होता है। तो वहाँ जाकर जब फारिग वक्त होता है, हल्के नहीं होते, तो वहाँ जाकर इन किताबों को देखें, पढ़ें। बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये भी एक किताब मकतबतुल मदीना की है, ये भी बहुत ज़रूरी है इसका पढ़ना। तो बातिन सही हो, अंदरूनी बातिन, ये अंदर अंदर का, ज़ाहिर या बाहर का। तो ज़ाहिर ने अंदर बाहर दोनों दुरुस्त हो, ठंडी गर्म तार दोनों होगी तो बल्ब रोशन होगा। अंदर गंद भरा हुआ है और ज़ाहिर सजा लिया तो ये भी नाकाफ़ी है। अंदर का अगर सही है लेकिन ज़ाहिर में अगर
लोगों के दिल दुखा रहा है, गालियां बक रहा है और तरह तरह के गुनाह कर रहा है जो नज़र आते हैं, तो ये भी जाहिर है कि ख़तरनाक है। तो दोनों तरफ से दुरुस्ती होगी तो फिर मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नसीब करे। सरदाराबाद वाले भी गौर फरमाए, जो मदनी फूल मिले इस पर, दीगर जो हमारे जहाँ जहाँ सुन रहे नाज़रीन, सब इन मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। कोट भाई खान वाले भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इह्या उल उलूम की जो 5 जिल्दें हैं, अमीर अल सुन्नत ने जो इरशाद फरमाया 2290 2290 और मिनहाजुल आबिदीन जो किताब आपने बयान फरमाई वो 170 इसकी जो मुख्तसर किताब है वो 115 रुपए की, और बातनी बीमारियों की मालूमात ये भी बड़ी प्यारी किताब है 190 रुपये 190 की, ये मकतबतुल मदीना से हासिल की जा सकती है। और अल मदीना लाइब्रेरी ये भी फैज़ान मदीना में कायम है। अगर हल्का निगरान इसमें कोई तरतीब बना लें तो इंशाअल्लाह इससे भी हमारे इस्लाम भाई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं कराची बल्दिया टाउन से बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल देख रहा था, मैंने स्नोकर क्लब था मेरा, मैंने वो छोड़ दिया। मदनी चैनल देखते रहते बाबा मेहरबानी से वो मैंने छोड़ दिया। मेरा किसी ने जेब काट लिया, 1.5 लाख रुपया था, वो मैंने आज तक उसको बुरा नहीं बोला। बाबा जी की बातें सुन के मुझे अल्लाह ने बहुत दिया। तो मेरी दाढ़ी शरीफ भी मैंने रख ली है और जौ की रोटी खानी भी शुरू कर दी है। जो सुनता हूँ वो कर, लेकिन बाबा जी से ये मेरा दुआ करा दो कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि उनके वहाँ पे मदनी चैनल वहाँ पे बैठ के उनका दीदार करूँ और नमाजें पढ़ने शुरू कर दूँ। इसलिए खास ये दुआ करवा देना। सवाल ये है कि मेरी बहन उम्रा पे जा रही है और ना कोई भाई ना उनका कोई शोहर भी नहीं जा रहा है, ना भाई जा रहे हैं, वो अपने ताया के साथ जा रही है, क्या वो जा सकती है? ताया उसके महरम है, जा सकती है ताया। मेरा नाम पहले जो इस्लामी भाई थे जिन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया और नेकियों की तरफ बड़ी रग़बत वाली बात की, लेकिन आखिर में जो नमाज के लिए बोला कि मैं दुआ करो नमाज भी पढ़ूं, यहाँ आकर नमाज पढ़ूं। हाँ कुछ तो ये बल्दिया टाउन तो बाबुल मदीना का इलाका है, तो वहाँ से जब कहाँ से दूसरे मुल्कों से बाज़ ईसाई भाई आ गए हैं, तो आप तो आ सकते हैं एहतिकाफ करने, अल्लाह तौफीक दे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। एहतिकाफ नहीं करते तो वैसे ही आ जाएंगे। कल जुमा है, असर के बाद इंशाअल्लाह हफ्तावार सुन्नत वाला इज्तिमा है, उसी में शिरकत कर लें। अगर एक रात गुजार लें, 3 रातें गुजार लें, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फाइज है। जो लोग भट्टी का काम करते हैं वो लोग रोज़े नहीं रखते, इनका क्या ऐसा करना दुरुस्त है? मेरा मुलाना साहब से सवाल है कि जो भट्टी की बड़े की दुकानें होती हैं मोहल्ले में, उससे धुआं उठता है और बदबू उठती है, तो ऐसे लोगों को तकलीफ, इसका क्या हुक्म है? भट्टी का काम जो करते हैं वो रोज़ा नहीं रखते, तो उनके लिए ये उज़्र नहीं है रोज़ा ना रखने का। वो उन दिनों इतनी देर तक काम करें जितनी देर तक बर्दाश्त होती है और रोज़ा रख सकते हैं। और अगर थोड़ी देर भी करते हैं और रोज़ा छूटता है तो फिर वो काम की छुट्टी करनी होगी। ज़रा वो बंदा भूखा तो नहीं मर जाएगा, और कोई कसब कर ले आसान सा कि जिससे वो पेट भर जाए। और रोज़ा बहरहाल फ़र्ज़ है, और इस तरह भट्टी के काम करने वालों को भट्टी का काम करते हैं या और भी मिठाइयों के काम और ये चूल्हे पर बैठने के काम जो करते हैं, तो बाज़ वक़्त वो रोज़ा इस वजह से नहीं रखते, तो ऐसा ना करें, रोज़ा फ़र्ज़ है। और दूसरे ने भी कोई मोहल्ले वालों को परेशानी होती है, इस तरह का काम होता है, वो ये तो असल मसला ही है कि हम बस कानून पर अमल हो जाए ना। असल इनके लिए मखसूस वो इलाके होते हैं, फैक्ट्री एरिया जिसको बोलते हैं, और बाहर मुल्कों में सनाइया के बाहर किसी की मजाल नहीं हो इस तरह का काम कर जाए, ऐसा कानून पर अमल होता है। हमारे यहाँ तो घर घर में भट्टियाँ खोल लेते हैं, तो जिससे धुओं से तकलीफ़ होती है लोगों को, मशीनों के शोर से तकलीफ़ होती है, तो
تو یہ جائز تو نہیں ہے کہ رہائشی علاقے میں ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. اس کے لیے علاقے مخصوص ہیں، وہاں یہ اپنا فیکٹری یا جو بھی یہ چلائے. اور جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ خدا کے واسطے رشوت لینا دینا بند کر دیں. وہ لیتے ہیں، دیتے کیا ہیں، دیتے بھی ہوں گے آگے کچھ لے کر حصہ بڑوں کو بھی دینا پڑتا ہوگا نا. تو بہرحال یہ کہ رشوتیں لے کر اس طرح کے کام آبادیوں میں نہ کرنے دیں. اگر یہ قانون پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ لوگوں میں امن قائم ہوگا اور ان کو سکون کا سانس ملے گا، ورنہ واقعی بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی. پھر اس طرح کے یہ جو چلاتے ہیں نا یہ بٹیاں اور یہ بڑے دادا گیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کو منع بھی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ توڑ پھوڑ مچا دیں گے، مار دھاڑ کر دیں گے. کیونکہ ان کو وہ پیٹھ ہوتی ہے نا بعض انتظامیہ کے رشوت خوروں کی، تو وہ ان کے بل پر وہ دادا گیریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. دیکھو موت سب کے مسئلے حل کر دے گی. موت آنی ہے، موت سے پہلے بھی اگر بیمار ہو گئے تو بعض اوقات بیمار بھی ایسا پڑتا ہے بندہ کہ وہ چین بول جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے قہر و غضب سے سبھی کو ڈرنا چاہیے. جو ایسا کام کرتے ہیں غیر قانونی اور یہ بٹیاں اور اس طرح کی چیزیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور قانونی بھی وہ جرم ہے. اگر قانونی جرم نہ بھی ہو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کو تکلیف سے تو بچانا ہی پڑے گا، یہ تو واجب ہے، ورنہ تو وہ گناہگار ہوگا. حقوق عامہ یا تلف ہوتے ہوں، چاہے گورنمنٹ کا کوئی ایسا قانون نہ ہو اس ٹاپک پر، لیکن اگر حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں تو اس سے بچنا ہی پڑے گا. لیکن قانون سب کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. میں نے بھلے بولا کہ نہ ہو، بالکل قانون ایک ایک تنکے کے قانون بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے چوپڑے ہوتے ہیں، بک ہوتے ہیں قانون کے. اور قانون دان جو ہیں اس فیلڈ کے ان کو پتہ بھی ہوتے ہیں اکثر، لیکن وہ عمل نہ کرتے وہ بھول بھلیاں ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے کا مجھے تو پتا ہے نا، قانون کے وہ کروٹیں لیتا تھا قانون. اپنے بچپنوں کی بات بتاتا ہوں کہ جیسے کبھی آیا زور پڑا تو گلی میں تھوکا تو بھی چالان، کوئی گھر میں سے کچرا پھینکا تو چالان، اگر گٹر کا پائپ جو باہر نکلتا ہے سیوریج وہ پھٹ گیا تو چالان، اور کورٹ میں پیشیاں. دیکھ کے بھالے تماشے میں نے، یہ صحیح قانون بنے ہوئے اور یہ سمجھ میں آتا ہے. کچرا پھینکا روڈ پر گلی میں، اچھا طریقہ تو نہیں ہے، مہذب طریقہ تو نہیں ہے، نظافت کے صفائی کے خلاف ہے. کچرا وہاں ڈالو جا کچرا ڈالنے کی جگہ ہے. اسی طرح گلیوں میں روڈوں میں تھوک کر پان کی پچکاریاں مارنا. لیکن اب تو ایسے نالائق لوگ ہیں کہ مسجدوں کے کونے کھدرے جو فنا مسجد وغیرہ اس میں پچکاریاں مار رہے ہوتے ہیں. اب آج کل کا پتہ نہیں ہے، لیکن پچھلے سالوں تک کا تو پتہ اب بھی کر رہے ہیں نا. وہ گٹکے کھا کے رنگ دیتے ہیں وضو خانے کونے کھانچے فیضان مدینہ کے، اور کیا اعتکاف کے لیے آئے ہوئے، مسجد کو بدنما کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر مسجد کو اس کی عمارت کو آپ بدنما کرو گے تو آپ کا عمل نامہ خوشنما کیسے بنے گا؟ وہ بھی بدنما ہو جائے گا. اس سے تو توبہ بھی کرنی ہے. جو جہاں بھی یہ رنگ برنگی تھوک نکالے نا یہ سب کو دھونا پڑے گا، یا دھلوا کر جو بھی اس کا نقصان ہوا وہ خرچہ پیمنٹ کرنا پڑا، چونا خراب ہوا، رنگ خراب ہوا، وہ کروانا پڑے گا. ابھی کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن مرنے کے بعد نگاہ پڑ جائے گا. یہ میں بولتا ہوں اس لیے نہیں، میں نے تو کیا بول رہا اپنی ذات کے لیے کیا، میرے کو تو یاد بھی نہیں تھا. پہلے ایسا ہوتا تھا، میں نے اس بار بھی ہو رہا ہے. یہ اس طرح بتا رہے کہ ہم سمجھاتے رہتے، ہم کر اور کیا سکتے، ہم وہ ڈنڈا لے کر تو مار تو نہیں سکتے. تو یہ قانونی بھی جرم ہے، شرعی بھی جرم ہے. کسی کی جگہ کو اپنے گھر میں کوئی اس طرح نہیں کرے گا، اللہ کے گھر میں یہ شر کر کے تھوک مار دیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں، چاہے معتکفین کر رہے ہو، چاہے خادمین کر رہے ہو، چاہے مسجد کا جو بھی عملہ ہے، اسٹاف ہے، کوئی بھی نہ کرے. یہ اللہ کا کرے. کسی کے گھر میں بھی نہ کریں، مسجد میں بھی نہ کریں، کسی کی جگہ میں بھی نہ کریں، اپنی جگہ میں بھی نہ کریں. اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ صفائی یہ اس شریعت کو مطلوب ہے، صفائی رکھنا سنت ہے. تو اس کو سب کو سمجھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے
को लगा लो शाहे वाला मुझे तैबा बुला लो तैबा बुला लो मुझे तैबा बुला लो तैबा बुला लो तैबा बुला दुनिया के झगड़ों से अक्सर छुड़ा है दुनिया के झगड़ों से अक्सर छुड़ा से दिल को मिटा कर दुनिया के झगड़ों से अक्सर छुड़ा को दिल से मिटा कर शाहे वाला मुझे अपना बना लो शाहे वाला मुझे अपना अपना बना लो मुझे अपना बना लो अपना बना लो मुझे अपना बना लो नेकों के सदके में हमसे बदो नेकों के सदके में हमसे बदो दो नेकों के सदके में हमसे बदो नेकों के सदके में हमसे बदो चारों नजारों मुसीबत बदो मौला निभा लो मेरे मौला निभा लो मौला निभा लो मौला निभा लो मौला निभा लो मेरे मौला मुस्तफा खैरुल वरा हो सरवरे गर्दो सरा हो अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभा लो मौला निभा लो मेरे मौला निभा लो मौला निभा लो मेरे मौला निभा लो मौला निभा लो मौला निभा लो मौला निभा लो मेरे मौला निभा लो आहा निभा लो मेरे मौला निभा लो उसके तरफदार हो तुम उसके मददगार जो तुमको निकम्मे से कम्मा नजर आए मौला निभा लो मेरे मौला निभा लो आहा निभा लो मौला निभा लो मौला निभा लो मेरे मौला निभा लो शाहे वाला मुझे तैबा बुला लो तैबा बुला लो मुझे तैबा बुला लो आँखों में आओ दिल में समाओ आँखों में आओ दिल में समाओ पर्दा उठाओ जलवा दिखाओ आँखों में आओ दिल में समाओ पर्दा उठाओ जलवा दिखाओ मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले बन दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने
मसरफ की नहीं सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए आँखों में आओ दिल में समाओ जैसा करते मेरे दीवार आँखों में हमेशा नक्श लगे रुए यार आँखों में आओ दिल में समाओ आँखों में आओ दिल में समाओ पर्दा उठाओ जलवा दिखाओ हसरत ज़दों की हसरत ज़दा की प्यारे दुआ लो हसरत ज़दा की प्यारे दुआ लो हसरत निकालो मेरी हसरत निकालो हसरत निकालो मेरी हसरत निकालो ये नूरी मुज़तर तेरा ये नूरी मुज़तर तेरा सनागर ये नूरी मुज़तर तेरा सनागर और इसका घर भर हो हाज़िरे अपने गदागर को दर पे बुला लो अपने गदागर को दर पे बुला लो आका बुला लो मुझे मौला बुला लो अपने गदागर गदर पे बुला लो अपने गदागर गदर पे बुला लो अमनो अमा से हमें सरवर बुला लो अमनो अमा से हमें सरवर बुला लो शाहे वाला मुझे तैबा बुला लो तैबा बुला लो मुझे तैबा बुला लो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत कलाम शहज़ादा आला हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का हमने सुना। अल्लाह करीम इन बाबरकत घड़ियों में हमारी इल्तिजा कबूल फरमाए और हमें सचमुच मदीने की हाज़री की सादत नसीब हो, आमीन। हज की सादत नसीब हो, मक्का मदीना देखना नसीब हो। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला मदनी मुज़ाकरे का जारी है और इन्हीं सिलसिले में एक वक्त ऐसा भी आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत मोतकीफ़ीन जो इस्लाम भाई यहाँ फैज़ान मदीना में जो हाज़रीन होते हैं इनसे भी सवालात करते हैं और दुरुस्त जवाब देने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की तरफ से आई हुई ईदी भी तोहफे में दी जाती है। माशाल्लाह अमीर सुन्नत के बड़े शहज़ादे हाजी उबैद रज़ा अतरी अल मदनी भी हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं। मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि वो हमारे हाज़रीन इस्लामी भाइयों से कुछ सवालात करें। जवाब दीजिए, कौन सी आयत तैयबा तमाम आयतों की सरदार है? कौन सी आयत तैयबा तमाम आयतों की सरदार है? फैज़ान मदीना में जिन इस्लामी भाइयों के पास अगर माइक है तो वो जो इस्लाम भाई जवाब दे रहे हैं उन तक पहुँचे। जी, कुछ कंप्यूटर की भी आवाज़ ऐसे महसूस हो रही थी। अच्छा, ये तो हबीबा भाई है, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिन इस्लाम, अच्छा सरदाराबाद से जवाब आ रहा है शाहिद भाई, सरदाराबाद में भी इस्लाम भाई जवाब देंगे? नहीं, ये तय कब हुआ है कि कौन जवाब देंगे?
नहीं आप सवाल क्या था हुजूर? कौन सी आयत तय्यबा तमाम आयतों की सरदार है? चले सरदाराबाद से जवाब आ रहा। जवाब वो दे कि जिसने दाढ़ी नहीं रखी थी, या तो दाढ़ी मुंडी भी थी या एक मुट्ठी से छोटी थी, तौबा कर चुके और अब बस जिंदगी भर पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की नीयत है, सच्ची सच्ची, है ना, काटना मूडना सब छोड़ा हुआ है। जो पहले से रखे में मरहबा, जिनकी नहीं निकली उनकी भी मरहबा, लेकिन जो काटते हैं या मूडते हैं और अब ये तौबा कर चुके हैं, आज वो जवाब देते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इंशाल्लाह जो इमामों की नीयतें करेंगे उनकी भी बारी लगाएंगे इंशाल्लाह। सरदाराबाद से अगर कोई है, पाबुल मदीना से कोई है, दिखाएं जी। सरदाराबाद में एक साहब भाई है, जवाब दीजिए जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने अज़्म का इज़हार कीजिए कि मैंने छोड़ दिया, तौबा कर ली है वगैरह। इंशाल्लाह आइंदा के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, पहले जो मुंडाता था मैं तौबा करता हूँ। माशाअल्लाह, एक मुट्ठी पूरी रखूंगा। देख रहे मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत सिलसिला है। सवालात के जवाबात भी हो रहे हैं, नेकियों की नीयतें भी हो रही हैं, माशाअल्लाह इल्म दीन भी सीखा जा रहा है। और यहाँ सिर्फ फैज़ान मदीना से ही सवालात के जवाबात नहीं हो रहे, सदाराबाद में माशाअल्लाह जो खुशनसीब इस्लामी भाई जमा है, सदाराबाद, फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वहाँ जो मुतक़िबिन इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनको भी अगर जवाब आता है और तो वो भी माशाअल्लाह माइक पर आ रहे हैं। जी इरशाद फरमाइए, नाम बताइए अपना। एक मुट्ठी पर इनको शायद आवाज़ नहीं पहुंची, इन्होंने हाँ नहीं फरमाया। कम से कम एक मुट्ठी रखूंगा अगर ये नीयत है तो। जब भी दाढ़ी पूरी होगी ना, इतनी सी तो फिर वो भी हराम है, छोटी सी जो रखते हैं वो तो फैशन की आजकल दाढ़ी हमारे चली हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखूंगा इंशाल्लाह। बाबुल मदीना दारुस सुन्ना में भी एक इस्लामी भाई खड़े हुए हैं। माशाअल्लाह, वो तो अल्लाह के लिए नीयतें करनी है, स्क्रीन पर आने के लिए थोड़ी नीयत करनी है। तो हौसला अफजाई मुझे जहन में आ गया कि चलो आज इनकी हौसला अफजाई कर देते हैं, इस बहाने कुछ ना कुछ अल्लाह करेगा, वो जमेंगे इंशाअल्लाह। शैतान की खैर नहीं है इंशाअल्लाह। सक्खर से भी खड़े हुए हैं और गालिबन। हाँ चलो, ये अब सरदाराबाद वाले जवाब दे दें। ये सक्खर है। अब अच्छा सक्खर, माशाअल्लाह। अब दोबारा सरदाराबाद आ गया, जवाब मेरा दीजिए। नाम मोहम्मद अली रजा है। माशाअल्लाह। एतिकाफ का भी अगर जवाब है आयतल कुर्सी। पूरे माह का एतिकाफ अगर आपने किया वो भी बता दीजिए। नहीं किया सवाल एक बार फिर सुन ले शहजादा हुजूर, सवाल कर ले, सवाल दोबारा कर लेते हैं साहबजादा। कौन सी आयत तय्यबा तमाम आयतों की सरदार है? जी अली साहब जवाब दीजिए। आयतुल कुर्सी। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये जो इस्लामी भाई सक्खर में भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, हो सकता है और भी कुछ नियतों का इजहार करने वाले होंगे। जो सवालात तो होंगे ना। ये तो कमाल है कि माशाअल्लाह बाबुल मदीना फैज़ान मदीना से सवालात हो रहे हैं, तो बाबुल मदीना से फैज़ान मदीना से जिसको जवाब, तो सक्खर भी है, तो जनाब सरदाराबाद फैसलाबाद भी है। अच्छा साईं, जिन्नात इंसानों के मुकाबले में कितनी तादाद में हैं? अब ये सक्खर ने दिया ना जवाब, अब कहीं किसी और शहर को मौका सरदाराबाद ने दिया। बाबा सक्खर की बारी है। अब सक्खर, माशाअल्लाह सक्खर ने दुरुस्त जवाब दिया। सरदाराबाद ने दिया था बाबा, फैसलाबाद ने। दाढ़ी वाले जो थे ना अली रजा, अच्छा वो जवाब अली रजा ने सरदाराबाद से दिया। सरदाराबाद से। चलो अब सक्खर वाले को मौका दो। माशाअल्लाह। जिन्नात इंसानों के मुकाबले में कितनी तादाद में हैं? इसी तरह जो दाढ़ी का जो मैंने मदनी फीस बोली थी उसी हिसाब से जवाब देना है। बाबुल मदीना से जवाब के लिए तैयार है। अभी सक्खर से तो ये यूँ लगता है कि ये जो बेचारे शेव्ड है या छोटी दाढ़ी वाले इनको कुछ पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत पुराने होते हैं, इसमें बड़ी मालूमात होती है। और दाढ़ी और इमामे वाले शक्लें देखते होंगे एक दूसरे की, फिर ये जवाब दे देंगे।
जिन्नात इंसानों के मुकाबले में कितनी तादाद में हैं? गिनती किसने की है? मैं किताबों में लिखा हुआ है, फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल में भी लिखा हुआ है। लेकिन देखो ये किताब से देखकर और नेट वगैरह से सर्च करके जवाब नहीं देने होते। कोई कान में बोल दे जवाब तो अब जवाब नहीं देना होता। इम्तिहान में नक्काली आपको पता मना होती है, तो अपने तौर पर जवाब दें तो ही वो जवाब दुरुस्त है, वरना वो आप तोहफा तो ले लेंगे लेकिन वापस देना पड़ेगा आपको। जी। जिन्नात इंसानों के मुकाबले में कितनी तादाद में हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानों की तादाद से 9 गुना ज्यादा है। आपका जवाब दुरुस्त है कि जिन्नात की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा जायद है 9 गुना। 9 गुना है। इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना है। यानी इंसान सपोज करो कि दुनिया में इंसान 100 है तो वो जिन्नात 900 है, 900। दारोगा जन्नत का नाम बताइए। अब बाबुल मदीना वाले जवाब दे दे। इसी मदनी फीस पर दाढ़ी वाली। सवाल अगर जहन्नम पर जो दारोगा जहन्नम, दारोगा जन्नत, अच्छा दारोगा जन्नत, ये लफ्ज दारोगा जहन्नम लजत, खाजिन है जन्नत और दारोगा जहन्नम माना एक, लेकिन वो जो कहा जाता है खाजिन है जन्नत और जहन्नम के जो दोनों मासूम फरिश्ते हैं वो दारोगा जहन्नम लिखा हुआ ये देखा है। तो बहरहाल चलो, खाजिन जन्नत यानी जन्नत के सारे निज़ाम के सबसे बड़े निगरान कौन है? आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व मेरा रहमतुल्लाहि व नाम बरकातुहू। मोहम्मद हुमायूं है, चकवाल से 30 रोज़ा इत्काफ के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। सुभान अल्लाह। आपके सवाल को जवाब है रिजवान। आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह कि जन्नत के जो खाजिन हैं उनका नाम है हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह बाबा जान आपके हुक्म मुताबिक और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए पूरी दाढ़ी रखने की नियत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा भी कर ली इंशाअल्लाह। वो तो अब तक मुंडा ही कटाई उससे। एक शेर है जिसमें इनका नाम आता है हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम का, है कोई जो शेर सुना दे? हाँ भाई नाथुआ हजरत। सुनाएगा नात खान सुनाएंगे भाई या हम जो सरदाराबाद में भी हाजी शाहिद के पास हो सकता है कोई नात खानी हो या सुनाए, तर्ज में सुना दे। हाजी शाहिद साहब खुद सुना देंगे। हाजी शाहिद भी सुना है तो मना थोड़ी है, अमीन सुना है मना नहीं है, कोई भी सुना है मना थोड़ी है। हाजी हमारे बड़े शहजादे सुना दे तभी मना नहीं है, ये तो कोई भी सुना सकता है। बैठने का याद है, ये मोई का भी याद हो, दोनों को याद होगा मेरा ख्याल है। चले कौन कलाम सुनाएगा? में शहद भी आता है। नहीं, आसान कर दिया। उस शेर में नहीं है। उस शेर में नहीं है। हाँ वो तो है, मैं कलाम की बात कर रहा हूँ करीब करने के लिए। हम इस तरह बात शायद नहीं बता सकेंगे मगर इनमें भी होते हैं, ये तो दाढ़ी वाले हैं। चलो 12 माह का ऐलान करके आप भी बता दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान अभी 12 माह की तो तरकीब नहीं हो सकती, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफिले की नियत करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जिंदगी में कभी भी
अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह सफ़र कर चुका हूँ सन 2002 में। नहीं तो ये मदनी काफिला भी चांद रात से करें ना, ऐसी कोई तरकीब बना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद के दिन मदनी काफिला में ईद के सफ़र दिन भी सही है मदीना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह। शेर सुना तरन्नुम के साथ। जन्नत में तेरी रिज़वां सोज़ो गुदाज भी है, जन्नत में तेरी रिज़वां सोज़ो गुदाज भी है इश्क में रुलाता है, इश्क में रुलाता सरकार का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको क्या मिलेगा? इनको जो दे देंगे मदनी तरबियत गाँव वाले। हाँ बापू, आज लगे ना तो बापू खाना नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक की तरफ से जन्नतियों पर सबसे आला इनाम क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतियों के लिए, जन्नतियों पर सबसे आला इनाम क्या होगा? इसका जवाब कौन दे? सरदाराबाद वाले माइक लेकर जवाब दे रहे हैं। तो इसका अगर यूं कर लें कि जिनको 3 माह हो चुके हों, 92 दिन हो चुके हों फिक्र मदीना करते हुए, अक्सर ये पूरे खड़े हो गए थे मदीना। मेरा ख्याल है सरदाराबाद में। जी जी, सरदाराबाद वाले खड़े हो गए थे, जवाब भी दिया, आवाज नहीं आ सकी हो सकता है इन्होंने भी दारी शरीफ की नीयत कर ली हो पूरी एक मुट्ठी। जी जी शायद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी मुबारका की नियत कर ली है और इंशाल्लाह ताला दाढ़ी रखूंगा। अल्लाह माशाअल्लाह। तौबा भी कर लीजिएगा, तौबा नहीं की तो कर लें, और अगर कर लिया तो इजहार कर दें। तौबा भी कर ली है अल्लाह ताला के फजल करम से। माशाअल्लाह। 1 माह का मैंने इधर इत्काफ भी किया इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, तक़ब्बल अल्लाह ताला इंशाल्लाह। हाँ जी जी। सवाल का जवाब है जी अल्लाह ताला का दीदार। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन हाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। फेसबुक के ज़रिए हमारे पास काफ़ी सवालात जमा हो चुके हैं। आइए कुछ सवालात और इसके जवाबात। नज़ीर भाई का सवाल है, क्या ज़कात की अदायगी के लिए हिजरी कैलेंडर का साल शुमार करना जायज़ है? ज़रूरी है, इंग्लिश कैलेंडर से नहीं। यानी मसलन किसी पर रजब की 27वीं तारीख को दोपहर के 12:27 पर कोई साहिब निसाब हुआ, तो आइंदा साल रजब की 27 तारीख 12:27 पर इस पर ज़कात फ़र्ज हुई। हमारे यहाँ रमज़ान में ज़कात समझते फ़र्ज होती है, रमज़ान में फ़र्ज नहीं होती, रमज़ान में भी होती है। जब भी पूरा साल गुजर जाए साहिब निसाब पर उसके शराइत के साथ, तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। और ये हिसाब हिजरी सिन से लगेगा, इंग्लिश साल से नहीं लगेगा। तौकीर भाई का सवाल है, औरत एतिकाफ में घर के काम कर सकती है जबकि घर में कोई काम करने वाला ना हो? काम करने वाला हो या ना हो, अगर वो जहाँ ये एतिकाफ की उसकी जगह है, उस जगह के अंदर भले करे सीना पिरोना, कपड़े सीना करना, सब कर, धो भी सकती है कपड़ा, वहाँ कोई हर्ज नहीं है। वहाँ चीज़ें जैसे कि सब्जी काटना वगैरह ये भी सब कर सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या औरत गैर महरम मर्द की मैयत के चेहरे को देख सकती है? हसान मलिक का सोशल मीडिया पे सवाल आया है।
غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے نا عورت، جبکہ وہ گندی لذت کے ساتھ عورت غیر مرد کو دیکھنا عورت کا جائز نہیں۔ اب اگر اس کو یقین ہے کہ گندی لذت نہیں ہوگی تو ویسے بھی غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے، اگر شبہ بھی ہو تو نہ دیکھے۔ تو اب غیر مرد کی میت کو بھی دیکھے گی چہرے کو، تو وہ وہی شرط ہوگی کہ وہ اگر اس کو گندی لذت پیدا نہیں ہوتی تو بھلے دیکھے، اور یہاں لذت پیدا ہونے کا چانس زندہ کے مقابلے میں کم ہے لیکن ہے، تو وہی اصول یہاں بھی کار فرما ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال ہے، اگر کسی کے پاس صرف 5 تولے سونا ہو تو اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ اور کچھ بھی نہ ہو، 5 تولے سونا ہو جی، اور اچھا پھر تو یہ زکوٰۃ تو 7.5 تولے پر ہوتی ہے، جبکہ واقعی اور کچھ نہ ہو، اور یہ ہوتا نہیں ہے ایسا، اور بہت کچھ ہوتا ہے جو مطلب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوتا ہے۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا ضرورت کے علاوہ رقم ہے یا بیچنے کا سامان ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ ملایا جائے گا، جی، اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچے گا، اور یقیناً پہنچ جائے گا جو رقم یہ ابھی بتا رہے ہیں فی الحال، تو اس کے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر صرف اور صرف 5 تولے سونے ہیں، اس کے علاوہ نہ چاندی نہ ضرورت کے علاوہ رقم نہ بیچنے کا سامان، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ ہے آپ کے پاس، صرف 1 روپیہ جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہے اور زکوٰۃ کے شرائط مطلب پائے جا رہے ہیں، تو اب یہ کہ 5 تولہ سونے اور اس 1 روپے کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس وقت وہ دیکھی جائے گی۔ تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا، جیسے آج کل کے حساب سے تو پہنچ جائے گا، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی کا بچہ بار بار بیمار ہوتا ہو اور وہ یہ کہے یا اللہ اگر دیا ہے تو اسے صحت دے دے ورنہ تیری امانت ہے تو واپس لے لے، مجھ سے بار بار اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حسنین خان کا سوال ہے۔ ایسی دعا اس کے مرنے کی دعا نہ کیجیے۔ جو رب اسے مارنے پر قدرت رکھتا ہے وہ صحت دینے پر بھی تو قدرت رکھتا ہی ہے، اس صحت ہی کی دعا کی جائے، صبر کیا جائے، اس کا علاج معالجہ جو بھی خدمت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ، تو اس پہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی یعنی کہ صبر آزما گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جب بعض بچے میں نے بھی دیکھے کہ ان کا جینا جو ہے نا، وہ زندہ ہوتے ہیں نا، جب تک وہ واقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیچاروں کا وقت کٹتا ہوگا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہیں، وسوسوں کو نہ پالیں، اور بس آپ کی ریکارڈنگ بھی ابھی ہوئی ہے نا، ہمدردی والا سلسلہ جو ریکارڈ ہوا ہے اس میں بھی آ رہے تھے بچے، وہ اور تھے، وہ جس طرح کے تھے نا اس کے مرنے کی تمنا نہیں کرتے ہوں گے کہ ان کو تو میں نے آفر کی نا 12 لاکھ کا دے دو، 5 لاکھ کا دے دو، یعنی یوں ایک چوٹ کرنے کے لیے، تو ایک نے تو 12 کروڑ 12 ارب 12 خرب میں بھی نہیں دوں گا، تو بولا بیچوں گا نہیں، تو پھر کائے کو غمزدہ ہوتے ہو یار، اتنی بڑی تمہارے پاس نعمت ہے، دولت ہے، اور تم بولتے یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، گلا شکوہ مت کرو۔ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے اولاد کہ اس کی وجہ سے تمہارا ہو سکتا ہے، اس کی برکت سے تمہارا خاندان پل رہا ہو اور گھر تمہارا چل رہا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں معتکفین شامل ہیں، اور اس میں حلقے بن جاتے ہیں ہمارے ہاں تاکہ ایک نظام بھی رہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کچھ حلقوں کو ہم نے نمبر دیے ہیں کہ آج کن حلقوں نے یا ان کے اسلامی بھائی امیل سنت سے یا ہمارے صاحبزادہ عبید رضا المدنی ہیں، ان سے سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج جس حلقے کی باری ہے نا وہ ہے حلقہ نمبر 42 42۔
اب میری تمام تر معتکفین یا حاضرین اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ اور اسلامی بھائی سوالات کے لیے نہ اٹھیں. یہ ایک نظام بنا ہوا ہے اور نگران جو حلقے کے ہوتے ہیں وہ اور ان کے اسلامی بھائیوں کو ایک ذہن دیا گیا ہے کہ آج آپ نے سوال کرنے تاکہ نظم اور انتظام اور یہ سارا ڈسپلن ہمارا باقی رہے اور مسجد میں ہے. سیکھنے کا بھی موقع ملے گا, سمجھنے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں کیا سوال ہوتا ہے امیل سنت کی بارگاہ میں. اور حلقہ نگران سے ناراض بھی نہ ہو کہ اس کو موقع دیا, مجھے موقع نہیں دیا, اس کو نہیں دیا. یہ ظاہر ہے کہ اب جب یہ 2-3 کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے اتنے ساروں میں سے, تو اب وہ بیچارہ کس کس کو دے گا. تو اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے, اس کو نا انصاف اور یہ اس طرح کی غیبتیں تہمتوں کے دروازے نہ کھولے جائیں, آنکھیں بند کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسنین اتاری کشمیر سے معنی اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایصال ثواب کا جو اس کے سلسلہ ہوتا ہے 30واں, 20واں, 40واں, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ 10واں, 20واں, 30واں, 40واں یہ سب جو ہے نا, ان کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ شریعت میں ان سے منع نہیں کیا گیا. رہا ایصال ثواب, ایصال ثواب کے تعلق سے تو حدیثیں موجود ہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یاد ہو تو حکومیں جو ام سعد. جی ام سعد, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تھے, کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں, تو عرض کی کہ ان کے لیے میں کیا کروں, تو فرمایا کہ پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس پہ لکھوا دیا تھا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے, امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے نقل کی ہے کہ میت کا قبر میں حال ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ڈوبنے والا. تو جس طرح ڈوبنے والا کسی کے انتظار میں ہوتا ہے, اسی طرح میت بھی انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے. تو جیسے ہی اس کے لیے دعا کرتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ اس کو پیش کی جاتی ہے. تو جس طرح ڈوبنے والا انتظار کرتا ہے, اسی طرح جو میت ہوتی ہے وہ بھی زندوں کی طرف سے ثواب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو اس کا ایصال کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس اتاری کشمیر سے 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. اور 30 دن کے بدلے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. 30 میں وہ 3 کا بعض اوقات شبہ پڑ جاتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ بلا عذر نہ پڑھا جائے, کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے. اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھا تو اس میں ہے اختلاف علماء کا, البتہ یہ کہ ہو جائے گی بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھی تو, لیکن پڑھنا نہیں چاہیے. بلکہ تھوڑا بہت عذر ہو نا تب بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تراویح کھڑے کھڑے ہی پڑھنی چاہیے. کہاں روز روز تراویح ملتی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس کی لذتیں اللہ کرے کہ ہم کو نصیب ہو جائیں. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم اتاری اصحابی زون ٹھٹا سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, امام صاحب کے ہاتھ میں اگر زخم ہو, پٹی بندھی ہوئی ہو, تو کیا اس پٹی پر مسح کر کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ مسح کے لیے یہ ہے کہ یا تو زخم کو پانی نقصان پہنچائے گا, یا یہ کہ جیسی پٹی باندھی ہے ویسی کھول کر یہ باندھ نہیں سکے گا دوبارہ, اور یہ زخم اس کا کھلا رہ جائے گا. تو یہ اگر مجبوریاں ہیں تو اس صورت میں باقی حصے تو وضو میں پانی سے ہی دھوئے جائیں گے. پٹی اور اس کے اطراف میں بھی اگر لپٹی ہوئی ہے پٹی, اس سب پر پانی والا ہاتھ پھیرا جائے, مسح اس طرح کیا جائے کہ اس کے ایک ایک ذرے پر پانی کی تری پہنچ جائے, تو اب وہ امامت بھی کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अदनान अत्तारी एक माह के इत्काफ़ के लिए कश्मीर से हाज़िर हुआ हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है, अगर आईन मस्जिद में नमाज तरावी की तरकीब है तो अगर कोई इस्लामी भाई अगर अंदर जगह है उसके बावजूद बाहर जाके नमाज तरावी शुरू कर देते हैं, क्या उनकी तरावी हो जाएगी? अगर मस्जिद में जगह है और फिर वो बाहर जमात में खड़ा हुआ है, सवाल का ये मतलब है? वो जो यही मतलब है, यही मतलब है, बता रहे हैं। हाँ, तो ज़ाहिर है को पीछे इस तरह का गैप छोड़ के तो मकरूह तहरीमी हो जाएगा ना। तो ये तो मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। सफ़ें पूरी करना वाजिब है। आमीन। गलत करते हैं जो ऐसा करते हैं। यहाँ एक सूरत आम तौर पे जो सवाल किया जाता है, जो मालूमात मिली है कि बसा औकात तरावी की जमात हो रही होती है लेकिन बाज़ लोग अपनी पढ़ने के लिए पीछे की तरफ चले जाते हैं। उसमें तो गुनाह अगरचे नहीं है, लेकिन फितने का खौफ है, लोगों में तनफीर होगी। जैसे खासकर ऐसे मकामात पर जहाँ दीन का काम हो रहा है, जैसे अब फैज़ान मदीना में आलमी मदनी मरकज़ में एहतिकाफ हो रहा है और सब अंदर पढ़ रहे हैं और दो चार ये कि अपनी अलग पढ़ रहे हैं, तो आने वाला तनकीद करेगा। और ये जो पढ़ रहे हैं वही भी तनकीद हो सकता है करें, ये क्या अलग अपनी मतलब जमात से क्यों नहीं पढ़ते, और ये पंचायतें और सवाल जवाब होंगे। तो इसलिए इससे भी मुसलमानों को तनफीर से, नफरत फैलने से भी बचाना चाहिए। अगर बिलफर्ज को वजह अलग पड़ता है तो छुप कर ऐसी जगह चला जाए कि जहाँ ये सफ़े, लेकिन चलो घर पे जैसे अपने पढ़ लिया अलग, कहीं जाकर अगर नहीं कोई वजह नहीं पढ़ता, जमात से तरावी फ़र्ज मस्जिद में जमात से पढ़ लिए तो अभी सुन्नतें पढ़ के तो घर में छुप कर इसी जगह तरावी पढ़े कि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले। अब ये कि देख ले, घर वाले भी बातें बना सकते हैं, सारा दिन सोया पड़ता है और तरावी भी नहीं पढ़ता मस्जिद में, तो ये भी माहौल नहीं बनना चाहिए घर का। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसा मदनी मुन्ना या मदनी मुन्नी भी हमारे साथ होते हैं कि जिन्हें हम कंप्यूटर के नाम से याद करते हैं, और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर वो सवालात और इसके जवाबात का उनके साथ सिलसिला रहता है। माशाअल्लाह हमारे इसी मदनी मुज़ाकरे के सिलसिले में हमारे बड़े शहज़ादे जो हैं वो और अमीर सुन्नत भी हमसे रमज़ानी कसौटी करते हैं, तो इसकी भी तैयारी रखिएगा। और पहले से अगर बता दिया जाए कि आज हमारी इस रमज़ानी कसौटी में जवाबात देने वाले कौन इस्लाम भाई होंगे, तो हम उसकी तैयारी करके रखें। तो ये अभी से इस्तिराब हो जाएगा यार, ये उठना बैठना चलना शुरू कर देंगे, तो जो इससे पहले जो सिलसिला हुआ ना शायद उसमें डिस्टर्बेंस शायद, क्योंकि मदनी मुन्ने की भी तैयारी है, तो हम इस दौरान 2-3 सवाल चला लेंगे जब ये तैयारी करें। एक दो सवाल करने जी, सवाल चलाइए। मेरा सवाल है, क्या औरत इद्दत में उम्रे पर जा सकती है? औरत इद्दत में उम्रे पर जा सकती है? नहीं, क्यों बाहर निकलना हुआ घर से, और ये घर से बाहर निकलना ये वो उज़्र नहीं है जिसके लिए इजाजत दी जाए इसको सफर की। बाबुल मदीना कराची से मोहम्मद एहसान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की पहले जैसी रौनक ही नहीं रही, तो ऐसों को आप क्या मदनी फूल इनायत फरमाएंगे? जवानी में जो खाने की लज्जत होती है ना, बुढ़ापे में आती नहीं है यार। एक तो ये तो मुंह खराब हो जाता है, दूसरा है कि तंदुरुस्त को खाने की जो लज्जत मिलती है ना, वो मरीज को नहीं मिलती, बेचारे का मुंह कड़वा हो जाता है, दवाएं पी के बाजों का मुंह कड़वा हो जाता है, वैसे ही कड़वा हो जाता है। तो इसी तरह जिसको पहले इबादत का ज़ौक़ था, शौक़ था, उसको रमज़ान की रौनकें ज़्यादा नज़र आती होंगी, और बाद में ये शौक़ कम हो गया होगा,
तो यूं उसको रौनकें कम लगती होंगी, यही समझ में आता है। बोलते हैं पहले, ये इज्तिमा का भी बोलते हैं, पहले इज्तिमा में बड़ा मज़ा आता था, पहले बड़ा ज़ौक़ होता था, दुआ में बड़ी रिक्कत होती थी, अब तो कुछ भी वैसा नहीं है, और ये हो गया वो हो गया। ये क्या, पहले ये नवे थे तो इनको मज़ा आता था, बाद में कम हो गया। अब जो नए होते हैं उनको मज़ा आता है, लेकिन ये से बेवकूफ़ लोग होते हैं कि नए को भी ये बात शेयर करते होंगे, यार पहले बड़ा रौनक होती थी, अब कम हो गई है, ताकि नया फिर ये टाटा करके चला जाए और आप नेकियों से बच जाए जमा करने से। तो ऐसी बातें करावा ही नहीं, अपनी तरफ ही नजर करे कि यार मुझे मजा नहीं आता। अब मुझे मजा नहीं आता तो हर एक को मजा नहीं आता, ये थोड़ी है पी लिया मेरे को है तो मुझे पीला पीला नजर आता है, भाई इसको तो नहीं है ना, तो इसको तो साफ साफ नजर आएगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अल्लाह का महीना है, प्यारा प्यारा महीना है, और इसकी रौनकें न कम कभी हुई है न कभी होंगी। ये मेरा सदाबहार महीना है इंशाअल्लाह। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल, मुरझाए दिल ताज़ा ईमान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। मस्जिदे आबाद रे गुनाह कम हो गया, मस्जिदे आबाद रे गुनाह कम हो गया। माहे रमज़ानुल मुबारक, माहे रमज़ानुल मुबारक का अब फैज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है बयान, आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है बयान। झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमज़ान है गुफ़रान है, आ गया रमज़ान 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 है। सुभान अल्लाह। अरे यूं मकसद आपका ये कि हमारी कैफियत बदलती है, और क्या, हमारी तबीयतें बदलती अगर हैं। ज़ाहिरी रौनक भी मुराद है तो बढ़ती जा रही है हर साल। पहले ये एहतिकाफ कहाँ होते थे यार, पहले तो चंद बूढ़े बेचारे बुजुर्ग, इक्का दुक्का चंद भी क्या, ये मस्जिदों में वो भी लोग बिठाते थे, बाजों को तो खाना पीना देखकर, और बेचारे तो कोई पता भी नहीं चलता था इतना। अल्लाह की रहमत से नौजवान हजारों की तादाद में एक वहाँ के एहतिकाफ के लिए बैठ रहे हैं। ये रौनक के तो शायद सदियों पहले भी ना हो, कभी तारीख में नहीं पड़ा कि इतनी इस तरह की रौनकें थी जो अब माशाअल्लाह इसमें बरकतें, तो रौनक बढ़ती जा रही है। यही बात वही है कि पीलिए वाले को पीला नजर आता तो वो बेचारा समझता होगा कि सब पीला पीला है, हालांकि ऐसा नहीं है। रौनकें बढ़ रही हैं अल्लाह की रहमत से, बढ़ती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। आप भी एहतिकाफ करते हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी करेंगी इंशाअल्लाह एहतिकाफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल मेरा एक दोस्त था ना, बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो मुझसे से नाराज हो गया था ना, तो वो फौत हो चुका था, उसके बारे में पूछना चाह रहा था ना। इनका दोस्त था वो नाराज हो गया था और वो उसका फौत हो गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह इनको गरीक रहमत फरमाए, बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ फरमाए। अब ये देखिए कि नाराज था तो कसूर किसका था।
मादल्ला आपने कोई इसको अगर जैसे जुल्म किया था और वो फौत हो गया तो अब ये क्या बस उम्र भर इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहे, अब और कोई तो हल नहीं है। अगर आपके पास उसके कर्जा रह गया और आप दे नहीं रहे थे तो इसका हल मौजूद है कि इसके वारिसों को दे दें, उसका जो भी कर्ज आता था। अल्लाह से माफ़ी चाहें, तौबा करें अगर कोई सी गुनाहों भरी तरकीब थी तो, और वैसे अगर खामखा नाराज हो गया था इसमें आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसाले सवाब तो करना चाहिए, मगफिरत की दुआ भी करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुन्नत से सवाल है कि कोई शख्स दूसरे शख्स से कहे कि मेरे हिस्से की भी नमाज पढ़ दो, तो उसका ऐसा कहना कैसा? बराह करम जवाब इरशाद फरमा दें। माज़अल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है कि नमाज में नयाबत नहीं हो सकती, नमाज में कोई मतलब नाइब नहीं हो सकता कि कोई एक के बदले दूसरा नमाज पढ़ ले। तो ये वो इस तरह की बात उसको नहीं करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चली है, मैं चाह रहा था उससे आपसे जवाब लिया जाए। किसी ने लिखा है, हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, यही बताने रमजान आता है। यही बताने रमजान आता है, यानी ये भी बताने हो ना तो शायद वो जुमला दुरुस्त हो जाए। यूँ ऐसा लग रहा है कि ये जो जिसने भी ये लिखा है कि जब शैतान कैद है उसके बावजूद भी तुम गुनाह कर रहे हो, तो इसका मतलब हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं है, तुम्हारी नफ्स अम्मारा गुनाह करवाता है। ये अपना नफ्स की 3 किस्में ना, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। तो ये नफ्स अम्मारा गुनाह करवाता है। अच्छा, अब असल में इस तरह के निकात जो हैं इसको सोचने की जगह जो रमज़ान का मकसद है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि शैतान के कैद होने का मतलब ये हो कि हर शैतान कैद हो गया, दीगर शयातीन मौजूद होते हैं। सरकश शयातीन का कैद होने का तज़किरा आया। दूसरा, बाज़ ने जो तफसीर की है, मुल्ला कारी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह ने एक ये भी की है कि कैद करने का मतलब ये है कि उसका असर कम पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है उसका असर, यानी बिल्कुलिया ख़त्म होना ये ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे आजकल मैसेजेस जो है वो चलते रहते हैं और इस तरह की वो दिक्कत नज़री और बारीक बीनी के साथ इस तरह की चीज़ें निकालते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं कि रमज़ान में इबादत की तरफ तवज्जो की जाए। उन्होंने इसको अपने लिए कोई अच्छा समझा होगा कि यार ऐसे डालते रहो तो लोग देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाज़ लोग डालते हैं, उनको शायद माना पर इनकी नज़र नहीं होती, वो ये भी सोच के शायद दे देते होंगे कि ये भी कोई अच्छा काम होता होगा। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर लाखों लोग होते हैं और ये चीज़ें वायरल होती हैं और ये आगे बढ़ाते रहते हैं, तो हमें इनकी इन इबारतों पर रहनुमाई अगर मिलती रहे तो मेरा ख्याल है कि लिखने सुनने पढ़ने वालों को भी इससे हमारी यहाँ से मिलने वाली रहनुमाई से फ़ायदा होता रहेगा। चुटकुले टाइप की बातें होती ही हैं। अब जैसे मैं आपको एक और पोस्ट बताता हूँ। एक और पोस्ट ये आई है कि मस्जिद का दायरा बड़ा कर लीजिए, 1 माह का मुसलमान आ रहा है। अब इस पर आप कलाम फरमाएं। हाँ, यही कि वो सारा साल नमाज नहीं पढ़ता, खाली माह रमजान में नमाज पढ़ रहा है, तो 1 माह का मुसलमान आ रहा है तो नमाज मस्जिद को जरा वसी कर लो। बस ये बेचारे नवड़ा क्या हुए नवरो नखोद वाले तो ये बेचारों और कोई सोचता नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ ये इस तरह के बोल बचन सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं। सोशल मीडिया है, फिर इनको कमेंट्स भी मिलते हैं ना, कमेंट्स में वाह वाह होती है तो और जोश चढ़ता है कि यार क्या तुमने निकाला यार। कमेंट्स में तो सोचने समझने वाले कितने, वो तो आगे भी बढ़ाएंगे और तारीफें भी करेंगे, मतलब गौर करने की तो तबीयत है ही नहीं। ये हाज़िर नाज़रीन, ये इस महीने में बहुत पोस्टें चलती हैं, लोगों को अपने पेज भी भरने होते हैं, बहुत पोस्टें चलती हैं। लिहाजा हर एक तहरीर को, हर एक की बात को आगे बढ़ाने का जो हमारा मिजाज है ये होना नहीं चाहिए। बाज़ों में बड़ी शरई गिरफ्त होती है और हमारे पास चूँकि इल्म नहीं होता तो हम इसको आगे पीछे करते रहते हैं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ کمپیوٹر. لبیک. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حسان رضا قادری ہے. آپ کی عمر؟ میری عمر 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات شروع کیجئے. یہ بیچارے جو فیڈ کریں گے نا کمپیوٹر میں وہی نکلے گا. یہ مدنی منی آتی وہ تو مذکر میں تو بول رہی ہوتی ہے وہ اس کو جو فیڈ کیا ہے. چلو آپ. جی روزہ کمپیوٹر یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کب فرض ہوئے اور کس پر فرض ہیں؟ روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے اور ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر روزے فرض ہیں. سبحان اللہ. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا وصول ہے. چند انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بتائیں کہ جو کب اور کس دن روزے رکھتے تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، 3 دن آخر میں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک کے روزے دار کے لیے دریا کی کون سی مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا روزہ کمپیوٹر یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ کس چیز کو فرمایا؟ فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں. حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد صاحب نے خواب میں روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد صاحب نے ارشاد فرمایا آنے والے رمضان میں مرض شدید ہوگا تو روزہ نہیں چھوڑنا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈاکٹر نے روزہ چھوڑنے کو کہا لیکن آپ نے روزہ نہیں چھوڑا اور اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے آپ کو شفا عطا فرمائی. ماشاءاللہ. روزہ کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا مضبوط جواب دے رہے بغیر اٹکے. اللہ نظر بد سے بچائے، علیم بعمل بنائے، دعوت اسلامی کا زوردار مبلغ بنائے. آمین. اچھا روزہ کمپیوٹر جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جنت کا وہ کون سا دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے؟ ریان.
سبحان اللہ. ریان. माशाअल्लाह. ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھنے کی فضیلت بتائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. یہ روزہ کمپیوٹر کوئی ایسا شعر سنائے کہ جس میں لفظ روزہ آتا ہو. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. سبحان اللہ. माशाअल्लाह. वाह. ماشاءاللہ. مرحبا. اللہ تبارک و تعالی روزہ کمپیوٹر کا حافظہ مزید کبھی فرمائے، ان کو عالم بعمل بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنے. امیر علیہ سنت نے ان کے بارے میں جو ان کے حق میں جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بغیر اٹکے تقریباً بڑے یعنی کہ استقامت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ جواب دے رہے تھے. ماشاءاللہ. عمر کتنی ان کی؟ 70. ماشاءاللہ. نام اور کچھ لکھے ہوئے نہیں ہے. حسان رضا. حسان رضا قادری. ماشاءاللہ. 7 سال کی عمر میں دیکھو، حالانکہ 60 سال کا بندہ بھی یہ جواب اس کے طرح جواب نہیں دے سکتا. چلو ٹھیک ہے، انہوں نے رٹا لگایا، رٹا بھی لگایا نا، اور تو لگا، آپ بھی تو لگائیں رٹا. دینی مسائل اور دینی احکام حدیث سے اس طرح یاد تو کرے کوئی. گانے کے رٹے لگاتے ہیں، گانے یاد ہوتے ہیں، فلم ایکٹروں کے نام کے رٹے لگاتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام ان کو پتا ہوتے ہیں، ایکٹریسوں کے نام پتا ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے نام پوچھو تو بگلے جاکیں گے، صحابہ کے نام پوچھو تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا کیا یاد ہونا چاہیے ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے جس میں شعور اور عقل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے مدنی منع حسان طاری کے لیے جو ہے وہ 12,000 روپے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے اور ان کے ابو کے لیے انشاءاللہ مدنی باکس پیش کیا ہے. ماشاءاللہ. 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 اللہ برکت دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.